लुक एट दिस क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान से समझना। x, y, z, there are three quantities. Okay, x varies inversely with y when z is constant. So when there is no role of z, you have inverse relation between x and y. And when z is x is constant, you got y inversely with z. Okay, so y inversely with z. इतना तो सबको समझ में आ गया होगा. Now you have some values given and then we need to find out the value of x when y is 16 and z is 21. अब देखो यार, यहाँ पे ऐसा दिया है when x is constant, y is inversely proportional to z, and when z is constant, y is inversely proportional to y. Now why are they talking about? सोचो ध्यान से, why are they saying that z is constant? तब आप ये बोल सकते हो x is constant, तब आप ये बोल सकते हो. That means definitely x, y and z, all three of them are related to each other, right? मतलब x और z के बीच में भी रिलेशन होगा. So what you can do is you can apply a little bit of logic, a little bit of brain, and then you can make things easy for you. देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे, if I remove the sign of proportion here, I have what? X equal to k by y, or let's say k1 by y. So I can say x into y equal to k1. Now this is for people who are still learning, beginner stage पे हो, उसके लिए. बाकी लोगों के लिए तो we can skip this step and then move to the next one. Similarly here I can say y into z equal to k2. The way we got this. Yeah, clear? अब आप क्या बोल सकते हो इसके आगे? आप ये बोल सकते हो, देखो ध्यान से, ये तो k1 एंड k2 आर द कांस्टेंट विच वी हैव टेकन, राइट? तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, ध्यान से समझना, कंबाइन करता हूँ, तो आई कैन टेक x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू अ कांस्टेंट. हाँ, इसमें घबराने वाली बात नहीं. देखो यहाँ पे हम लोग इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे हम इसको वाई स्क्वायर नहीं बना सकते हैं. अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वाई स्क्वायर बन जाएगा. नाउ इन क्वेश्चन देर इज नो मेंशन ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर. वाई स्क्वायर का मेंशन है ही नहीं. सो यू कैन नॉट हैव वाई स्क्वायर, यू कैन अफोर्ड टू हैव वाई स्क्वायर. अब देखो इससे बेनिफिट क्या हुआ. इफ यू कीप z कांस्टेंट, you have x into y equal to constant, right? That means y is inversely proportional to x. If you keep x constant, then you get y into z equal to k. That means z is inversely proportional to x. ये बात आपको समझ में आ रही है? When two things are inversely proportional, then we can say their product is constant. Like speed and time, they are inversely proportional when distance is constant. तो हम लोग क्या बोलते हैं? Speed into time equal to constant. And as a formula we know, speed into time is equal to what? Distance, right? So if two quantities are inversely proportional, then we can say their product is constant. Clear है? ठीक है, सब बढ़िया चल रहा है? यार नहीं बढ़िया चल रहा है तो हमें बताओ, ओके? इट विल बी इजी फॉर अस टू इम्प्रूव. हाँ चलो यहाँ पे आते हैं. नाउ अब तो क्या, अब तो वैल्यूज रख दो. अब ये यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हो, सो आई एम श्योर then now it is cakewalk for you, right? y8 z7 x30, तो ये आपको कांस्टेंट मिलेगा. तो प्रोडक्ट कर लो अभी. नाउ व्हाई टू राइट दे, हम लोग यहीं पे निकाल लेते कांस्टेंट का वैल्यू, या फिर कांस्टेंट का वैल्यू मत निकालो, आप उसको इक्वेट कर दो. मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. क्या पहला सेट ऑफ वैल्यूज क्या है? x इज 30, y इज 8 एंड x इज 7. तो 37 एंड नो सॉरी, चलो 8 ले लो. 8, बात वैसे सेम ही है, 8 इंटू 7 और 7 इंटू 8, बट फिर भी go as per the question say is constant. Now this constant is also equal to the next set of values of x into y into z, isn't it? ये तो constant है, x y z are variable. Question से find the value of x when y is 16 and z is 21. ठीक है, y is 16 and z is 21. Now you know my way of doing math, doing the question. कैलकुलेशन सबसे लास्ट में करो, पहले सब लिख लो आराम से. अब आराम से कैलकुलेशन करो. देखो कैलकुलेशन कितना सिंपल हो जाता है. ये इक्वल है ना, दिस इज इक्वल टू के एंड के इज इक्वल टू दिस. सो बेसिकली दिस
एक्सप्रेशन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन एज वेल। अब उसको सिंप्लीफाई हम लोग ऐसे कर सकते हैं, 8 1 8, 8 2 16, राइट, 30, 3 10 3 7, करेक्ट। अब क्या करोगे, 7 7 कैंसिल हो रहा है यहाँ पे डायरेक्टली, और देखो यहाँ से क्या होगा, 2 5 10 बन रहा है, मतलब k को तो जाने दो, x का वैल्यू जो हमारा अननोन है, k हैज नो रोल नाउ, सी k इज जस्ट मेकिंग बोथ दिस इक्वेशंस इक्वल, k का कोई रोल है नहीं, ओके, इट इज जस्ट टू मेक बोथ ऑफ देम इक्वल, इट्स जस्ट टू से a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, सो a इक्वल टू c, राइट। चलो आपका x का वैल्यू यहाँ पे कितना बचा, 5, सो x इज इक्वल टू हाउ मच, 5। डू वी हैव दिस इन द ऑप्शन, यस वी डू, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। आई होप यू गॉट दिस सोल्यूशन वेल। यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको समझना चाहिए, दिस मस्ट बी न्यू टू यू, ध्यान से समझो, रिवाइंड करो, फिर से देखो, एंड आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड।